اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, you are watching your favorite program Iqra, and I am your host Dr. Jamil Rathod. In this particular religious Quranic program, we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format and discipline of our program, first we shall give you the recitation of holy verses, and our today's program consists of verse number 6 to 8 of Surah Al-Mu'min of the 24th part of Al-Quran. And as usual, you are requested to listen to these verses according to the canon of Sharia, according to the teaching of the Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, when Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that God's blessings may be achieved. So let us listen to these verses respectfully by Qari Ghulam Hassan Al-Hasni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Dear viewers, we were listening the holy verses of Al-Quran, and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me
for better and fluent recitation of Al-Quran. وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very, very important segment of our program, because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic. And then we transliterated or romanized these verses, particularly for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise is followed by Urdu English translation, as well as in the end we will also give you the brief explanation of these holy verses. So keep watching this program and stay with us. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. In Roman,
वकज़ालिका हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना कफ़रू अन्नहुम अस्हाबुन नार। इन उर्दू, और इसी तरह वाजिब हो गया अल्लाह का फैसला कुफ्फार पर कि वो दोज़खी हैं। In English, and thus the word of your Lord has been proved against the infidels, that they are the inmates of the fire. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. इन उर्दू, जो फरिश्ते उठाए हुए हैं अर्श को और वो जो अर्श के इर्द गिर्द हल्का बांधे हैं, वो तस्बीह करते हैं हम्द के साथ अपने रब की और ईमान रखते हैं उस पर और इस्तिग़फ़ार किया करते हैं ईमान वालों के लिए. In English, those who bear the throne and those around it sanctify their Lord with praise and believe in him and beg forgiveness for the Muslims. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. In Roman, ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. इन उर्दू, कहते हैं, ए हमारे रब, तू घेरे हुए हर शय को अपनी रहमत और इल्म से, बस बख्श दे उन्हें जिन्होंने कुफ्र से तौबा की है और पैरवी की है तेरे रास्ते की, और बचा ले उन्हें अज़ाब जहन्नम से. In English, O our Lord, you comprehend everything in mercy and knowledge, so forgive those who repented and followed your way, and save them from the torment of hell. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. इन उर्दू,
ए हमारे रब, दाखिल फरमा उन्हें सदाबहार बागों में जिनका तूने इनसे वादा फरमाया है, और जो काबिल बख्शिश हैं, इनके वालिदैन, इनकी बीवियों और इनकी औलाद से। बेशक तू ही सबसे ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। In English, O our Lord, admit them into gardens of habitation which you have promised them, as well as those who are righteous of their fathers and wives and children. Undoubtedly, you are the honorable, the wise. नाज़रीन इकराम, हमारा आज का सबक अपने इख्तिताम को पहुँचा। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर कुफ़ार और अहलियान जहन्नम का ज़िक्र कर रहा है कि जब वो दुनिया में मुस्तकिल कुफ्र करते हैं, शिर्क करते हैं, अल्लाह के अंबिया का इनकार करते हैं, तो अल्लाह फरमाता है कज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना कफ़रू अन्नहुम अस्हाबुन नार, कि फिर उन कुफ्र करने वालों पर अल्लाह का फ़ैसला वाजिब हो जाया करता है, यानी उनको जहन्नम के शौलों में जलना है। अल्लाह ये हतमी और क़तई उनके हक़ में फ़ैसला फरमा दिया करता है। तो काफिर और मुशरिक ये वो हैं कि जिनको मरने के बाद कोई जज़ा नहीं दी जाएगी, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के अंबिया का इनकार किया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत में उन्होंने इनकार करते हुए दीगर खुदा तलाश किए, दीगर माबूदों की इबादत की। नतीजतन अल्लाह तबारक व तआला उनके मुक़द्दर में जहन्नम लिख दिया करता है। इसके बरअक्स मुसलमान हैं, गुनाह कर जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में आकर तौबा कर लेते हैं, तो कितना ही बड़ा कोई गुनाह करने वाला क्यों ना हो, कल क़यामत में उसे पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। बाज़ मामलात ऐसे हैं जो हुकूकुल इबाद के ज़िम्मे में आते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं फरमाएगा, बल्कि वही बंदे जिनके साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी की थी, अगर वो दरगुजर कर दें तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर कोई इस दुनिया में जुल्म करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे सज़ा ज़रूर देगा, लेकिन बिल आखिर सज़ा के बाद उन्हें भी जहन्नम से या जहन्नम के कम से कम दर्जे में डालकर फिर उन्हें दोबारा जन्नत में डाल दिया जाएगा। और वही मोमिन होंगे गुनाहगार जिनकी सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमा देगा। लेकिन काफिर और मुशरिक की बचत का कोई खाता नहीं हुआ करता। और फिर इन आयात में हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब वो कुफ़ार और मुशरिकीन अहले ईमान को गालियाँ दिया करते थे, उन पर लान और तान किया करते थे, उन्हें बुरे नामों के साथ याद किया करते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि अर्श के वो मलाइका जो हामिलीन अर्श हैं, अर्श को उठाए हुए हैं, वो अल्लाह की तस्बीह करते हैं और इसके साथ साथ अहले ईमान का जिक्र करते हैं, उनके हक़ में इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। तो ये काफ़िर ये मुशरिक अगर अहले ईमान को अगर लान तान कर रहे हैं, उनके अच्छे नामों से याद नहीं करते, कोई बात नहीं। मोमिन तो वह हुआ करता है कि जिनका जिक्र और जिनका चर्चा अर्श मुअल्ला के मलाइका भी किया करते हैं। चुनांचे यहाँ हामिलीन अर्श का जिक्र किया जा रहा है कि वह अल्लाह की तस्बीह और तहलील किया करते हैं। अब मलाइका के जो इज्तिमाई काम है वो ये है कि अल्लाह की तस्बीह और तहलील करते हैं। दूसरी तरफ वही मलाइका इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, नबी मुकर्रम पर दुरूद भेजते हैं, सलाम पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बताया गया कि मलाइका है वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, अहले ईमान के लिए दुआएं मग़फ़िरत किया करते हैं। तो अहले ईमान तो बड़े खुश नसीब हैं। इस दुनिया के फ़राइना नमारिदा, इस दुनिया के मुशरिकीन अगर उन्हें ब्लेम करते हैं कोई बात नहीं, अर्श के मलाइका अल्लाह की नूरी मखलूक उनके हक़ में दुआएं मग़फ़िरत किया करती है। और फिर ये बताया गया कि ये दुआएं मग़फ़िरत के साथ साथ दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह जिस तरह इन्होंने दुनिया में तेरी राह में जिहाद किया, तौहीद को बयान किया, ए अल्लाह इन्होंने कलम जिहाद बिल कलम किया, इन्होंने जिहाद बिन नफ्स किया है, इन्होंने इस दुनिया के बड़े बड़े उमरा को रिजेक्ट किया है, तेरे मुकाबिल में तेरी वहदानियत को बयान किया है। और जितने भी बड़े बड़े सरदार हैं, चौधरी हैं, ए अल्लाह तेरे मुकाबिल उन्हें कुछ नहीं समझा, समझा है तो तुझे समझा है, कादिर समझा है, बसीर समझा है, समी समझा है। ए अल्लाह तुझे वाहिद व यकता समझा है, तुझे तेरी यकताई और तेरी यगानगत को बयान किया है। तो ये अल्लाह इन्हें जन्नत जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, वो जन्नत जिसके नीचे नहरें बह रही है, वो जन्नत जिसमें बड़े आज़ीम शान मिंबर सजे होंगे, ए अल्लाह उन्हें वो जन्नत अता फरमा। तो मोमिन तो वो हैं कि जिनके लिए नूरानी मलाइका दुआएं मांगते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें
उनकी दुआओं की मिस्ताक अता फ़रमाए और हमें उनकी दुआओं का मिस्ताक बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।